Today we are discussing FPA in particular, that is a free and particular average, the very particular aspect of the dispute between the course of the maritime insurance. उससे related सारे aspects हम आज discuss करने वाले हैं. And apart from that, other financial solutions, that is a financial planning association. So this hashtag is dual meaning. This is having the FPA as well as the insurance one. So these both things are going to be covered over there. Yeah, Anish ji, Yes, sir. Prateek Actually, ji, if you find anything relevant to add in respect to the topic or maybe perhaps in line with the FPA thing, so you are more than welcome. Thank you, Prince. Actually, I just joined, so I'm not really sure what exactly we are discussing. Right, Anish ji, I will brief it up. See, basically, अगर आप मरीन इंश्योरेंस के कोर्स में देखेंगे तो एक पर्टिकुलर मैं सिचुएशन आप लोगों को बताता हूँ. जैसे आपने कार्गो को एक पोर्ट ऑफ ओरिजिन से लोड किया और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन के लिए वो जा रहा है, और बीच में अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हो गए जो कि आप देख नहीं पाए, या तो कोई तूफान आ गया या फिर कोई एकदम ऑन बोर्ड फायर अगर हो गई, तो उस पर्टिकुलर केस में कई बार ये होता है कि यू हैव टू ऑफलोड सम कार्गो इन ऑर्डर टू सेव द रेस्ट ऑफ द कार्गो. उससे रिलेटेड जब क्लेम के डिस्प्यूट्स होते हैं और उसमें क्या सिचुएशन बनती है, एंड उसके अंदर कितना जो सी वॉयेज वगैरह के टाइम पे क्या प्रीमियम रहता है, ये जो मरीन कोर्स का जो प्रीमियम और इंश्योरेंस सेक्टर है ये कितना बड़ा है. So this is what a broad framework is there, and slowly we can just go to the nitty-gritty of the affairs. Okay, so actually, I don't have much knowledge about this sector as such. So I probably won't be able to contribute much. Well, Anish ji, that is absolutely fine, because we would be here very happy to help you out in this particular domain. And meanwhile, I am pretty sure that if you are in touch with the organized insurance, तो आपको उसमें काफी चीजें समझ में आ जाएगी, and we will take your contributions in the meanwhile. And I will request Prateek ji. Okay, can I? All right. First of all, जो insurance coverage है, it can be provided for medical expenses, vehicle damage, property loss, and other damages, etc. ठीक है, and it depends on the different type of insurance. First of all, इसके benefits क्या है? Provide protection, provide certainty, and risk sharing इसमें रहता है. Another one, value of risk and capital generation, economy growth में करता है, and saving habits होना ज़रूरी है. Another one is type of insurance coverage. First of all, life insurance. अगर कहूँ तो life insurance में ये term life insurance included होती है, and इसमें depends on like जो सामने वाली बात ये होती है कि वो कितने years की insurance लेना चाहते हैं और कितने की नहीं. Another one is a general insurance. जर्नल इंश्योरेंस में अगर कहा जाए तो जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होती है, और इसमें अगर इंक्लूड किया जाए, अगर एक आपका नेल भी है ना तो उसकी भी इंश्योरेंस होती है. तो जनरल इंश्योरेंस में बहुत सी चीज़ें कवर अप होती है. एंड हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन इंश्योरेंस, होम एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मोटर ऑटो व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, एंड फॉर एग्जांपल मैरीन इंश्योरेंस और वेल्थ इंश्योरेंस का भी इसमें रहता है. So just wait. So Arun and Vani, the topic is very diverse, and I think covering each and every topic won't be of much interest to everyone. So if you guys can break it down, and if you want to take views over a broader kind of insurance, and obviously if the audiences have some kind of questions, or maybe Anish, Prateek, and I, in a little capacity, try to add how we can see insurance sector in the market, or perhaps the importance of term insurance and other kind of insurance, which is very relevant to everyone. So that kind of session would be more interactive, but it's your prerogative how you want to go about it. Over to you. Right, sir. We would prefer that particular format itself, because at times it becomes very pertinent from the point of view of the listeners also, that where exactly they are going to derive the quotient over there. So let us have some views from the Pratik sir, and in the course of 10-15 minutes, we would be narrowing down the exact direction of the
insurance sector. I think Anish got dropped. You can send him a request again. Anish, if you are listening, kindly accept the request again. Prateek, over to you. सर ऐसा तो मेरे को पॉइंट टू पॉइंट इन इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है वही है, इतनी डीप नॉलेज नहीं है, बट मैं इनके मार्केट के रिगार्डिंग जो करंट सिनारियो है मैं बस वो बता सकता हूँ। अब वो आपके टॉपिक से रिलेवेंट है या नहीं है वो मुझे थोड़ा डाउट है। लाइक अभी जो मरीन इंश्योरेंस वगैरह की बात में थी, कार्गो इंश्योरेंस की, उनके जो फ्रैट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह है ये पहले यूरोप में पाइपलाइन से आती थी, अभी थ्रू मरीन आ रही है, कार्गो जा रही है। तो जो एक इंडेक्स चलता है जिसमें टैरिफ के बेस पे ये इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वो सब बहुत हाई हो चुके हैं। और मैं तो सर मार्केट से रिलेटेड बता सकता हूँ कि पॉलिसीज के बारे में तो मुझे बस वो बेसिक नॉलेज होती है कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, जनरल इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, वो तो सभी को ही पता है, उसमें तो मैं क्या बोलूँ। तो इनके अलावा तो इस टॉपिक पे तो मेरा कोई ऐसा इनपुट नहीं है, बस मुझे ये पता है कि अभी इस समय इनका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि क्रूड ऑयल इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है या फिर यूरोप में हो रहा है या अमेरिका में कहीं पे कुछ भी हो रहा है, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कार्गो के बिजनेस पे, ये सब वो चीज़ें पता है। जैसे अभी एक रीसेंट का एग्जांपल देता हूँ कि अभी फैट फिंगर ट्रेड हुई थी ना, जिसको 200-250 करोड़ रुपए के लिए बोलते हैं, तो वो फैट फिंगर ट्रेड होती है ना, उसका भी इंश्योरेंस होता है, वो भी जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। मतलब ब्रोकर ऐसी अनएक्सपेक्टेड ट्रेड के लिए इंश्योरेंस करवा के रखता है, तो वो भी एक इसी जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। सर इतना इनपुट था, मैं तो टाइप बता सकता हूँ कि ये चीज़ इंश्योर्ड होती है। अब उसकी टीएनसी वगैरह में तो मैं क्या बताऊँ, ये मेरा कोर फील्ड नहीं है। So Arun, Arun or maybe Vani, would you like to again take the stage and perhaps, I mean, Sir, particularly, I would like to ask about one particular thing and that one more thing, we have a wealth podcast with us. He is into recording spaces, and obviously they share the thing on your handles, and obviously that recorded session is posted over their YouTube channel. So yeah, I have requested him to record today's session. So you can in future also, if you people are hosting these spaces regularly, you can reach out to Wealth Podcast. They are doing a very fabulous job, and obviously after 1 month, normally the recording goes away from Twitter Spaces. But if it is put on YouTube, then it can be kept for a longer period of time. So over to you. thank you very much, sir, and definitely we are going to follow the Wealth podcast. और हम इनसे after the space also we will just discuss and try to take an advantage of the services they are offering. It will widen our spectrum and sort of insurance एक तरह से हमारी जो intellectual input है उसके लिए हम इंश्योर कर सकते हैं यहाँ पर. So coming back to the topic, ये जो एक पर्टिकुलर डोमेन अभी जैसे प्रतीक ने बताया है, इन पर्टिकुलर डोमेन में जो ब्रोकर इंश्योरेंस करवाया है अनएक्सपेक्टेड ट्रेड्स के लिए. सो एक मेरी क्यूरियोसिटी है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस जो ट्रेड होते हैं वहां पे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनका जुरिस्डिक्शन जो रहता है, जैसे वॉट एवर आपको रजिस्टर यहाँ करवाना पड़ेगा, लेकिन इज इट पॉसिबल दैट इन द इंटरनेशनल कोर्स ऑफ ट्रेड जो बिजनेस होते हैं उसके लिए क्या कोई सेपरेट एसोसिएशन है जिनसे आपको रजिस्टर करवा करके लाइसेंस लेना पड़ता है? एनी रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन? आई एम लुकिंग इंश्योरेंस फ्रॉम द टू पॉइंट ऑफ व्यू. एक तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी को अगर सर्विसेज चाहिए जो स्टेक होल्डर है अपने कार्गो की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, यानी जो उसका यूजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए कंज्यूमर. और दूसरा एज ए स्टेक प्लेयर, एज ए इंडस्ट्रियल, एज ए ओनर, एज ए इंश्योरेंस कंपनी, ये सेक्टर को एज ए इंडस्ट्री भी देखना चाह रहा हूँ. तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दोज पॉसिबिलिटीज एज वेल. प्रतीक और एक्सीडेंटल सर, इफ यू गाइस कैन प्लीज गाइड अप, और इसके स्पेक्ट्रम्स जो दूसरे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो भी बताइए सर. सर मैं बताता हूँ, ऐसा तो देखो मेरे को जितनी लिमिटेड नॉलेज है ना, कि जैसे सपोज कार्गो आता है, ठीक है, तो उसको ओरिजिन कम जैसे ओशियन के थ्रू आए, ठीक है, तो इसके अंदर तो अदर कंट्रीज भी कर लेती है। अब इनमें जैसे जैसे अमेरिका सैंक्शन लगाता है, जैसे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं बताता हूँ। जैसे ईरान के ऊपर अभी करंटली सैंक्शन है, ठीक है, तो ईरान से अपन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि उसमें अमेरिकन कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होगी या यूरोपियन कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होगी, तो यूरोपियन कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अब इनसे ये इफेक्ट पड़ता है कि अपनी कंपनी जो इंडियन कंपनीज है ना, वो इंश्योरेंस तो कर देती है उनको, बट उनको री इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। री इंश्योरेंस करवाने के लिए जितनी बड़ी कंपनी चाहिए ना वो इंडिया में नहीं है।
है ना। तो उन सब के लिए फिर उनको अपन को अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी चाहिए होती है, तो इस वजह से अपन इंपोर्ट कर पाते हैं ना, तो वो इंश्योरेंस में दिक्कत आती है। सेकंड थिंग, अपन डॉलर टर्म्स में डील नहीं कर पाते, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है। तो अब जैसे अभी अपन रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, सपोज कुछ भी रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा है, तो अभी इसके अंदर अगर सैंक्शन लग जाता, अमेरिकन कंपनी वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो देन फिर इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाती, फिर अपनी को इंडियन कंपनी को इंपोर्ट करना पड़ता, फिर वो री इंश्योरेंस नहीं कर पाती, तो वो पूरा की पूरा जो बर्डन आता ना, लॉस होता अगर वो शिपमेंट में, तो पूरा इंडियन कंपनी को बियर करना पड़ता, वो आगे री इंश्योरेंस नहीं कर पाते। जैसे अपन इंडिया के अंदर अभी सपोज अपनी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, या फिर अपनी जनरल इंश्योरेंस में मेडिकल या कुछ भी होता है, तो देन वो वापस आगे री इंश्योरेंस होता है, वो जनरल इंश्योरेंस को अपनी है जीआईसी तो वो री इंश्योरेंस करती है। तो ये सब प्रोसीजर होता है। तो अभी जो आप बात कर रहे हो ना कि वो कंट्री के लिए कोई अलग से, मेरे को जितनी, सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे को जितनी नॉलेज है, या तो ओरिजिन या फिर जहाँ से अपना शिपमेंट आ रहा है, जहाँ रिसीव हो रहा है, उनमें से कोई एक कंट्री कर देती है, और उसको री इंश्योरेंस करने के लिए बड़ी कंपनी चाहिए होती है, वो यूरोप में और अमेरिका में ही है। ऐसा सच अलग से कोई लाइसेंस नहीं आता। मैंने जितना मेरी एकेडमिक लाइफ में पढ़ा है, हमारे कोर्स में होता था, मैंने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा। राइट सर। सर एक जो ब्राउनी पॉइंट मैंने अभी आपके स्टेटमेंट से निकाला है, दैट बड़ी री इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो यूरोप और अमेरिका में ही होती है। सर वी हाँ। हैव इंटीग्रेटेड कैपिटल मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब, राइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू टोक्यो, यस। via Luxembourg and London and Mumbai. So why is it so that the concentration of reinsurance companies is only there in the Europe and US? सर बेसिकली इतना कैपिटल बेस है नहीं ना, अपनी इकोनॉमी तो जरा सी है। जितना एप्पल का मार्केट शेयर है, जितनी मार्केट की कैपिटल है एप्पल की, उतने अपने टोटल इक्विटी मार्केट की टोटल वैल्यूएशन नहीं है। तो अपन कैसे इतना बड़ा बियर करने के लिए अपनी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। Right. So we are lacking in the GDP terms. हमारे पास investment muscle जो है, that is lacking. यस। All और सर right. बेसिकली अपन जो, अगर अपन सरवाइव भी कर रहे हैं ना अपनी कंडीशन, ये मानो हम ये लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन टाइप की कंट्रीज की वजह से ऐसी नहीं है। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि अपनी आईटी कंपनी स्ट्रांग कर रही है, बस इसकी वजह से अपना डॉलर का इन्फ्लो हो जाता है। अदरवाइज इतने क्रूड ऑयल की जो रेटें वगैरह चल रही है और ये सब जो हो रहा है, तो इतने में अपन ऐसे सरवाइव नहीं कर सकते। अपने पास कुछ है नहीं करने को, एक्सपोर्ट इतने कुछ होते नहीं है कि जो अपन इतनी बड़ी इकोनॉमी बन पाए। कंजम्पशन बेस है कि अपने पास कंजम्पशन है, बस इसी पे अपन राजा है। so we are the buyers. That यस। makes us the king. But ultimately we end up paying. या Right, sir. Accidental, sir. Kindly please throw some more light over this particular issue. Or I will request Anish also. Yeah, please request Anish. Arun, I'm a little occupied. That's why I'm asking these people to. Anish, an overview over insurance sector, or maybe anything you want to add. See, I on insurance, I'm not very specialized or well versed, but from what I read, I just know that currently insurance sector is having a bit of a problem because of the Ukraine situation. So any goods to be insured from to Russia or Ukraine, there is a problem. And from what I've heard is that some of them, they've actually stopped insuring the goods from these countries. Also, there is problem in Sri Lanka. So a lot of these insurance companies which are insuring goods for companies operating in Sri Lanka or trading with Sri Lanka, those are also taking a hit. And the other thing is I guess most of y'all already know is that a lot of the insurance companies took a hit because of the COVID in the last 2 years. So there's been a lot of claims, and recently insurance companies have not been doing too well in the stock market. So those are some of the headwinds which are there, and those probably, I guess, will remain for some time as long as these uncertainties are there. But as such, I feel that over a longer period of time, insurance companies should do well. Once trade resumes, geopolitical tensions, they kind of subside, then some of these companies will perform. But I think short term, there's going to be quite a bit of overhang. That's all I know. I don't know anything much other than this. अनीश जी, स्लाइट इनसाइट, कोविड की वजह से क्लेम्स तो बढ़े हैं इंश्योरेंस कंपनी के, इसमें कोई दोहमत नहीं है। सर क्या
उसकी वजह से इंश्योरेंस सब्सक्रिप्शन भी बढ़े हैं लोगों में, देखिए डर से कि कल को कुछ हो जाएगा, और क्या उसके प्रीमियम्स भी बढ़े हैं लाइफ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंगली, जो इतने क्लेम्स बढ़ गए हैं उसके सामने? इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट. So yes, that's a good point. I missed that. So yes, from what I understand is that the number of insurance policies have been there has been an increase in the number of insurance policies, and in fact there are a lot of new subscribers for policies. People who didn't consider taking an insurance policy, whether it's health insurance or life insurance, they have taken the step to insure themselves and their families because of the बिकॉज अभी पीपल अभी लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या भरोसा, अभी टुडे इट्स बीन कोविड फॉर लास्ट 2 years, अब वो मंकी पॉक्स भी आ गया है, you know, that also has spread to I think more than one I read a news just an hour back कि more than 1000 cases have already been detected all over the world. और you know, and what happens is ये सब जो problems होती हैं, तो it's all, we don't have some, because they don't originate from our country, you know, it's either from China or Africa or somewhere, but ultimately because it's a global, you know, we are a marketplace, we are connected, then somebody or the other comes and we ultimately get affected, and it comes into our country also. So these are the things that we cannot be isolated, and that is why I keep stressing to people is that don't anything related to business or market, equity or whatever, investment, stock market, always look at it from a global perspective, because unless we understand the global you know, what is happening in the global marketplace, we'll not understand कि भाई वो price या वो whatever the trends हैं वो क्यों हो रहे हैं, and to what extent the impact will be there. So just slightly unrelated, but just to give you an example, like today Target has given a second warning in the US, and you know, there is a bit of a panic in the US markets. So similarly, you know, whether it's insurance sector or जो भी है, तो ये सब चीजें जब होती हैं, तो we being a part of the global marketplace, we get also impacted, and we are government का thrust है, we want to do more and more trade, global trade, we want to increase that. तो उसमें if you want to do that, then you cannot escape some of these headwinds and some of the risks which are there, and to mitigate these risks, insurance is necessary. So in a way, yes, you're right कि वो मेरा ये मानना है कि the insurance business as such is growing, the claims are also there, but how much they are benefiting as such in the increase in the insurance premium that they're earning versus the claims that they have to settle, that data I don't have today exactly. So net to net maybe आपको ज्यादा पता होगा, because मैं इंश्योरेंस को उतना क्लोजली नहीं ट्रैक करता. I track a lot of other sectors other than of course mainly metals, but other than that I track a lot of sectors, but insurance को I don't track very closely. Thank you, Anish sir, for giving that particular idea at the macro level. Incidental sir, please go ahead. Yeah, Arun. So a few basic points I just want to add today. Basically, the topic which was very heavy, which you started, in my little capacity, I couldn't add much to that. But एक generic sense में जो insurance का है, जो मेरी little knowledge है, उसको मैं share करना चाहूँगा. देखो, basically जब इंडियन मार्केट की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली जो इंश्योरेंस है उसमें दो डिबेट हैं कि अंडर पेनिट्रेटेड है या अंडर इंश्योर्ड है. ठीक है, देखो पेनिट्रेशन का ऑब्वियसली जिस लेवल पे आप वेस्टर्न कंट्रीज में और बाहर जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो लेवल इंडिया में नहीं है फॉर श्योर, लेकिन यहाँ पे अंडर इंश्योर्ड भी है. आपने देखा होगा वी गाइज आर इनटू मिक्सिंग इन्वेस्टमेंट विद इंश्योरेंस. ठीक है, जो सबसे बड़ा इश्यू हम इंडियंस के साथ है, जो LIC मतलब जो हर किसी की जबान पे LIC चढ़ी हुई है, दैट इज वन रीजन. तो बेसिकली जो मेरी समझ है और जितना कि मैं समझ पाया हूँ, यू वोंट बिलीव, जो यूलिप प्लान्स थे, मैंने अभी पीछे 1-2 महीने पहले 3 पॉलिसीज को सरेंडर किया है, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग, राइट. तो सबसे बेसिकल जो दो इंश्योरेंस जो मेरे को समझ में आती है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, राइट. तो सबसे पहले जहां फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, वी हैव टू, मतलब ये है कि जैसे बिजनेस में मोट होता है ना, ऐसे ही एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में मोट एज इन मतलब ये है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर लाने के लिए भाई अपने आप को
life is very uncertain, you never know, and covid was the best example, right? तो उसके बाद आपने देखा होगा टर्म प्लान्स में काफी स्पाइक हुआ है, और ऑब्वियसली कि देयर वर टफ टाइम्स, मेनी क्लेम्स वर देयर, और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका जो मार्जिन है वो काफी हिट हुए हैं, लेकिन वही है कि रेवेन्यूज भी उनके जो कि इंश्योरेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दैट विल ऐड टू टॉप लाइन, तो वो हुआ है। और दूसरा एक और जो बेसिक सी चीज जैसे पूरा अक्रॉस सेक्टर्स हो रहा है, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास जो आ रहा है ना, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स बेसिकली जो निकल के आ रहे हैं, तो आने वाला टाइम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए अभी तो काफी रिचली ओवरवैल्यूड है, बट में एक्सपेंशन होने का है, वो काफी अच्छा स्कोप दिख रहा है। तो इंश्योरेंस सेक्टर इज वन विच नीड्स टू बी स्टडी। दूसरा जो टर्म इंश्योरेंस है उसमें भी आप देखोगे, उसमें भी जो क्या बोलते हैं आप उसको, कि आपको उसमें भी इन्वेस्टमेंट वाले प्लान्स उन्होंने ऐड कर दिए। एक तो प्योर टर्म प्लान हो गया, और एक उसमें ये होता है कि आपका कि भाई आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब तक आपका टर्म इंश्योरेंस है, तो आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है, प्रीमियम ज्यादा हो जाता है बट आपको कैशबैक या जो भी मतलब आपको रिटर्न मिलता है, जैसे यूलिप प्लान्स वगैरह में होता है। तो गाइस टर्म इंश्योरेंस आप अपना कि आपकी डिपेंडेंसी कैसी है, आपने जस्ट मतलब आपकी डिपेंडेंसी और आपकी अर्निंग्स और आपकी फैमिली की नीड्स के हिसाब से आई शुड सजेस्ट कि भाई जितना पॉसिबल है सबको टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा ये है कि वैसे तो सबको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, बट पैरेलली अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी केप्ट सो दैट इन केस ऑफ इवेंचुअलिटीज और अनसर्टेन इवेंट्स आपका जो पूरी उम्र की सेविंग्स है वो कहीं मेडिकल में ना लग जाए। तो दीज आर वेरी बेसिक्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एक बार, और इसमें एक और अच्छा पॉइंट होता है, द अर्ली यू स्टार्ट द लेस प्रीमियम यू पे। बट हाँ ऑब्वियसली आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू पे, बट अगेन दैट आल्सो एड्स सिक्योरिटी टू योर लाइफ एंड योर लाइफ ऑफ द फैमिली। तो यही बेसिक पॉइंट्स है, और बाकी तो इसको इंश्योरेंस एज ए ब्रॉड सेक्टर हम डिस्कस करते हैं बाकी लोगों के साथ। अरुण और वानी, मैं आप लोगों को भी इनपुट चाहूंगा तो काफी थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट है, जैसे आप स्पेसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने देखा काफी टाइम से कर रहे हैं, एपिसोड 81, तो थोड़ा जो आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लान कर रहे हैं वो ऑडियंसेस को थोड़ा बिफोर हैंड अगर आप बता पाए तो दे विल बी वेल प्लेस्ड कि भाई वो भी थोड़ा अपना देख सकते हैं कि व्हाट द टॉपिक इज। और जैसे क्योंकि सिंपल एफपीए से समझ में नहीं आया, राइट? व्हेन यू गाइस शेयर्ड द लिंक यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, इवन आई वाज क्लूलेस व्हाट इज दिस एफपीए। तो थोड़ा ये होता है कि इफ वी गेट टू नो अबाउट द थिंग्स इन एडवांस, सो श्योरली हम भी थोड़ा एक बार उसमें देख लेते हैं क्या है, और जो अपना थोड़ी लिटिल नॉलेज है वो भी ऐड करने का कोशिश करते हैं। तो गाइज ओवर टू यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस, एंड वी हैव our own ecosystem with a number of guys who have different kind of domain knowledge. Anish, Pratik, Wealth Podcast, and we have formed a team. There are other members also I had invited, but due to some predefined, I mean, they were busy with their schedule, so they couldn't join. But perhaps we will continue this ecosystem where educational spaces are being hosted. So guys, those who have joined, thank you so much. And if you like our spaces, kindly associate with our handles. Thank you. Over to you, Arun and Vani. Thank you very much, sir. And all the points and all the suggestions you have suggested, we are definitely going to implement it from the very next space itself. और जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं आपने जो कही है वो सारी ही पॉजिटिव चीजें हैं। विल ट्राई टू मेक इट अप 100% टू डू इट। सर एक छोटा सा जो एफपीए का है, तो सेम थिंग गोज विद द, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना जरूरी हो गया है। इन्वेस्टर्स का जैसे लुक हमने दे दिया इसमें, जब तक आपको कोई चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक लोग नहीं आएंगे। तो यंगस्टर्स के अंदर ये एक टेंडेंसी हमने मार्क करी है फ्रॉम पास्ट 10 to 12 स्पेसेस, that whenever they are seeing the hashtag, this particular platform, Vani has taken an initiative जिसके अंदर all the topics, they are very very noble. None of the topics have been repeated except for the rehabilitation of drugs. उसमें हमने 3 spaces करी है on one single topic. Apart from that, all the topics have been varied and different. We were having a challenge that we should pick up one particular topic और उसके ऊपर हमको एक series बनाना चाहिए. But then, as a youngsters, the challenge was taken up,
and all the different topics. So if it is 81, so I am pretty sure that close to 75 or 76 different topics have been covered for only 2 hours. Since youngsters are having very limited time, उनके ऊपर दबाव बहुत रहता है सर, क्योंकि एनर्जी उनके पास है, स्किल्स उनके पास है, और सबसे ज्यादा एफर्ट्स जो डाल सकते हैं किसी भी काम के लिए एज पे जाकर के वो यंगस्टर्स ही डाल सकते हैं. दे हैव द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हैव रिलेशनशिप का रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. जितना तनाव उनके पास रहता है, इसी के सामने इनवर्सली प्रोपोर्शनेट उन लोगों का रेम्यूनरेशन रहता है. तो व्हेनेवर वी से इंडिया की हम जो स्पेसेस देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, दूसरे फॉर्म्स ऑफ मीडिया देखते हैं, तो वी हैव अ वेरी लिमिटेड स्पेक्ट्रम ओपन फॉर देम. सो वी हैव ट्राई टू जस्ट गिव एजुकेशनल और जो वेराइड एक स्पेक्ट्रम है, ताकि इंडियन यूथ जो इतना फर्टाइल है उनको एक विजन मिले, और उसी विजन के थ्रू हम इस चीज को उनके माइंड में डालना चाहते हैं that there are lots and lots of things which we guys are capable of, and if we take an initiative, success is definitely going to serve us. So from that objective and थोड़ा और explanation और communication जो है core teams को, that we are going to improve. कुछ चीजें हमारी भी shortcomings रही है, उसको भी हम improve करेंगे. ओके, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, इंश्योरेंस के ऊपर ही आते हैं. एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरे डोमेन में था, मेरी क्यूरियोसिटी भी थी पर्टिकुलरली, इफ यू गाइस कैन जस्ट गाइड अस. एक पर्टिकुलर स्कीम लेके आई गई थी अमेरिका में प्रेसिडेंट ओबामा के थ्रू, और उन्होंने इंश्योरेंस का जो है सबको एक प्लान दिया था, और उसी का कंटिन्यूएशन आयुष्मान भारत के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया. अगर आप गरीबों को 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस करके दे रहे हैं, तो वो जो उनके इलाज में खर्चा आ रहा है वो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से निकाल करके दे रही है, एंड फॉर दैट सेक दे नीड नॉट टू इनकर एनी प्रीमियम. तो क्या उस चीज का कोई प्रभाव इंश्योरेंस के बिजनेस पे पड़ा है? इंश्योरेंस कंपनीज के लाइफ इंश्योरेंस का जो एक पर्टिकुलर सेक्टर है, जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट के ऊपर कोई दबाव पड़ा है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल? हेल्थ केयर जो है ये सेगमेंट काफी इंप्रूव होता हुआ उसमें दिख रहा है. तो फ्यूचर में जैसे जैसे हेल्थ केयर को लेकर के अवेयरनेस आएगी, तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द प्राइवेट एज वेल एज फ्रॉम द जो गवर्नमेंट ओन LIC है, उसके बिजनेस पे क्या प्रोस्पेक्टिव बन रहा है? दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू नो सर. प्रतीक, अनीश सर, एक्सीडेंटल सर. सर, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, जो मेरे अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम है और प्राइवेट मेडिक्लेम वगैरह है, इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ना, वो ये पड़ा है कि जो ये जो ज़्यादा छोटे हॉस्पिटल्स थे ना, उन्होंने बहुत अच्छा कमाया, ठीक है. और जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स है ना, उनके अंदर से प्राइवेट मेडिक्लेम वाले कस्टमर है ना, वो रह गए. जैसे मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ की मेडिकल सेक्टर को मैं थोड़ा, मतलब मेरे फैमिली में रहे तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम इज दैट कि जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, अब आपका वहाँ पे कोई की हेड इंजरी होगी ना, तो वहाँ पे फिक्स है कि 30,000 ही देंगे. अब प्रैक्टिकल तो बात ये है कि वो 30,000 में ना और कोई 7-8 साल से वो रेट ही अपग्रेडेशन नहीं हुई, तो जो ढंग का ट्रीटमेंट होना चाहिए ना पेशेंट का, तो वो नहीं होता. अब जैसे वो उसकी नीड है कि 7 to 8 डेज वो स्टे रहना चाहिए हॉस्पिटल में, बट वो 2 से 3 दिन में उनको फ्री कर देते हैं. तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि वो क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज है ना, वो डिग्रेड होती जा रही है आयुष्मान भारत की वजह से. तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होने चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं. अब इसके चक्कर में एक्स्ट्रा गैदरिंग रहती है हॉस्पिटल्स में. तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्योंकि उसके अंदर तो वो वैसे ही फ्री है फैसिलिटीज ये सब, तो उसमें एक्स्ट्रा गैदरिंग रहती है, तो जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, और सर्विसेज भी अच्छी नहीं होती. तो आयुष्मान भारत वगैरह से आपका कवरेज तो बढ़ गया, बट क्वालिटी ऑफ सर्विस वो डिग्रेड होती जा रही है. सो बेसिकली हॉस्पिटल्स आर द वन जिनको बेनिफिट ज्यादा मिला है, और सेक्टर एज सच उससे इतना अफेक्ट नहीं हुआ है बिकॉज जो कंपनीज. ओके, अनीश सर, एक्सीडेंटल सर. यस, तो एक पॉइंट जस्ट जैसे अभी बात हो रही है तो जस्ट मेरे माइंड में आया है. सो आई थॉट आई जस्ट because I've never really looked at the insurance sector in isolation like I've looked at all the other sectors in the stock market. But एक चीज है कि हमारा जो सेविंग्स रहते हैं इंडिया का, ग्रॉस सेविंग्स रेट जो है, that is one of the highest in the world as a percentage of our GDP.
So, because we are basically people who believe in savings, we are not a credit oriented country or population wherein we believe in buying everything on credit, which is more in the Western world, US and Canada and Europe to some extent. So 28 odd percentage is our gross saving as a percentage of the GDP. That is very, very high. Now, agar aap dekhenge some statistics, so until January of this year, the life insurance premium that was first year life insurance premium that was collected was 2,27,000 crore rupees, which is almost $30 billion. But however, जो हमारा इंश्योरेंस का बिजनेस है उसका पेनिट्रेशन is still only 4.2%, which means that there is a huge untapped potential which is there in our country for insurance from a long term point of view, जो अभी भी untapped है. मेरा ऐसा मानना है कि Indians as a in general ह्यूमन हम लोग का जो साइकोलॉजी है कि हम लोग इंश्योरेंस के वी डोंट लुक एट इट एज समथिंग विच इज अ नेसेसिटी. वी वो प्रीमियम हम जो देते हैं हमारा टेंडेंसी है टू टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट है तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू एन एफडी और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. बट मेन थिंग इज प्रॉब्लम इज दैट व्हेन दैट इज वेयर द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज कि अगर हम उसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखेंगे then it is an investment for your security, whether it is life, health, or whatever it is. But if you look at it as a financial kind of investment, then it's obviously not going to be giving you those kind of returns that other instruments will give you in the market. So wo jo penetration is very low, and I think if the insurance companies or the sector as a whole can educate people on the necessity of this insurance, that with some facts or some presentations or data, some more I don't know what they can do, probably marketing, where people feel the necessity कि इसके बिना हम नहीं कर सकते. अगर 28% of the GDP हम लोग savings कर रहे हैं, then a small portion of that putting it into life insurance, what is wrong in that? I mean, तो वो necessity हम लोग feel नहीं करते, and that is the reason that we have not grown exponentially like the other kind of Western world, where insurance is a very, very huge business. I mean, like जैसे आपने बोला थे insurance business है, reinsurance business है. Because I have an IT background, I've worked for 20 years. तो मुझे पता है कि we were handling I was working for Hexaware Technologies, and I was head of worldwide operations. So we were handling some, multi-million dollar insurance companies and health insurance companies in particular. And we knew that it was a very, very, very big business. So jaise wo it is so widespread there, it is not at all the case in India. But potential is very, very large. So वो एक चीज है कि if we understand these statistics, and if this business as a whole is marketed very well and people are made to feel the importance and necessity, just like we eat food, this is probably as important, because we cannot survive without insurance. कि कल कुछ हो जाता है, then what really happens, whether it's health or life or anything like that. तो ये point मेरा यही कहने का था कि insurance business potential है, but it is huge untapped potential. Right, sir. And I will just give a small interjection. जो आपने अभी कुछ facts और figures बताए हैं, मैंने behind the paper napkin एक जल्दी से calculation किया. $30 billion, that to a life insurance premium. Sir, our Right. GDP is $3 trillion. That is just 1% of the total GDP. So Correct. I particularly feel that this particular premium, with such a huge population, exposes our nation at a very, very large risk. I think that this should be at least 5%. So there is another $120 billion that are supposed to be there at current stage, and if our economy is going to grow due to inflation, then this figure is going to balloon a lot more. ये एक पोटेंशियल है. अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के सेक्टर में अपना वेंचर अगर शुरू करना चाहता है, तो यस, देयर इज अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अनटैप्ड मार्केट्स व्हिच आर देयर. एंड आई थिंक पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का जैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी का होता है,
उसी तरह से काफी IRDA भी प्रोटेक्टिव स्टेप्स और जो कंज्यूमर्स के लिए एक फंड अलग से निकाल करके एजुकेशनल एडवर्टाइजिंग भी करते हैं. तो दे नीड टू कम आउट विद अ प्रॉपर पॉलिसी एंड प्रॉपर विल एंड विट थ्रू विच people are getting involved in this particular sector as an investment as well as for their own protection and future planning. जो कभी कोई मिसहैपनिंग हो गई उसको कवर करने के लिए, रिस्क को कवरेज करने के लिए इसके अंदर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसमें पोटेंशियल बहुत बहुत ज्यादा है. आई थिंक एटलीस्ट 10% हमारी इकोनॉमी का अगर प्रॉपर प्लानिंग करी जाए तो GDP के अंदर हम इसी पर्टिकुलर सेक्टर से ग्रो कर सकते हैं. फ्रॉम 3 to 3.5 ट्रिलियन डॉलर वुड नॉट बी पेसिमिस्टिक ही रहेगा. अगर हम इस पे ध्यान दें तो एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल है जिसको टैप किया जा सकता है. व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर सर आइडिया? इसमें मेरा जो व्यू है सर, उसमें प्रॉब्लम है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, उनके उनके एंड पे है. उन लोगों को पता ही नहीं होता पॉलिसीज के बारे में कौन सा होता है. आपकी इच्छा हो जो मेंबर बन जाते हैं पॉलिसी बांटने वाले, तो प्रॉब्लम उनके अंदर है. वो डायरेक्टली जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि इस पॉलिसी में ये, इस पॉलिसी में ये, उनको खुद को नहीं पता. मेरे सामने 5 मिनट तक कोई पॉलिसी वाला नहीं टिक पाता, वो मेरे 2 क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे पाता. उनको खुद को ही नहीं पता कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे करनी है, बस उनको बता दिया. वो तो ऐसे होते हैं जैसे कोई मार्केटिंग वाले होते हैं, जैसे लैपटॉप बेच रहे हैं, टीवी बेच रहे हैं, बस उनको ये पॉइंट्स पता है. तो सर ऐसे प्रॉब्लम इज दैट कि वो ढंग से एक्सप्रेस ही नहीं करते पॉलिसी, तो बिकेगी कैसे, क्या होगा. उनका सीधा मोटिव ये है कि जिस पे ज्यादा कमीशन मिल रहा है वो पॉलिसी बेच दो. अब तो ऐसे ऐसे सिस्टम होने लगे, मेडिक्लेम की पॉलिसी लो, मार्च एंड में लो जाके, तो उनसे उनके टारगेट हो जाते हैं, और 1 महीने 15 20 25 दिन का जो पीरियड होता है उसमें जाके कैंसिल करवा दो. उनके टारगेट भी हो जाते हैं, काम भी होता है. ऐसे तो पॉलिसी बिकती है. तो सर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से पब्लिक में नहीं है. जो लोग कंपनी जिन लोगों के थ्रू मार्केटिंग कर रही है, तो आइदर चाहे आप उनको कमीशन कम दो, चाहे सैलरी ढंग के एजुकेटेड बंदे रखो ना, जिनको ये चीज पता हो. और आप ज्यादा नहीं कर सकते तो जो उनके टीम लीडर है वो ढंग के रखो, कि वो टीम लीडर ढंग से एक्सप्रेस कर सके, प्रोडक्ट के बारे में बता सके, तब कुछ करे. तो वो ही ढंग से नहीं समझा पाते तो कौन सी पॉलिसी इतनी सेल आउट होगी. बस वो बिकती है फिर तो, कि भाई जिसमें इतना नेट मिल रहा है तो इसलिए लोग ले लेते हैं. वो सिंपल बात है. प्रतीक एग्जैक्टली. बट उसमें क्या होता है कि एक IRDA होता है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट यस अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो इसका जो एक टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, अगर आप कोई भी FPA यानी कि कोई भी इंश्योरेंस का एजेंट होता है या इंश्योरेंस कंपनी में जाने से पहले उस जो एग्जाम होता है उसे क्लियर करना होता है. तो उसमें कैलकुलेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग सिखाया जाता है. अगर वो आप नहीं क्लियर कर पाओगे सो उसके बाद में आई डोंट थिंक सो कि आपको एजेंट का भी पोजीशन मिलता है उसमें. तो सबसे पहले वो चेक करना चाहिए कि उसने क्लियर किया है या नहीं किया है, उसके बाद में ही. वो तो मैं समझ गया, मेरे को तो नॉलेज है, मैं पॉलिसी पढ़ के मैं कर लूंगा. बट आप रूलर में जाके देखोगे, उनको थोड़ी पता है ये सब चीजें कि उसने क्या क्लियर करा है क्या नहीं करा. जो LIC का पॉलिसी बेचने वाला कोई भी बन जाता है. एक सिंपल सा एक पेपर, एक सिंपल सा नॉर्मल सा एग्जाम होता है, उसमें बन जाता है. इनफैक्ट उसमें इतना कमीशन बांटा जाता है कि स्टार्टिंग के 1 साल तक तो उनको पर्टिकुलरली कुछ सर्टेन अमाउंट की सैलरी दी जाती है. फर्स्ट LIC का जो सॉरी फर्स्ट पॉलिसी होती है ना, उसके अंदर उनका 30-35% उनका कमीशन होता है. रीन्यू पे फिर भी कम होता है. तो उनको तो उन्होंने एज ए बिजनेस बना लिया है कि बस वो पॉलिसी अब बेचनी है, चाहे उसमें क्या है क्या नहीं है उनको खुद को नहीं पता. मेडिक्लेम कराते हैं लोग, कितने से लोगों को ये पता होता है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से मेडिक्लेम कराओगे और गवर्नमेंट कंपनी से मेडिक्लेम, मतलब ये ओरिएंटल वाली और नेशनल इंश्योरेंस है ना, NIC वाली, इनमें और प्राइवेट कंपनी के इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है, इनको ये तक नहीं पता कि उसके अंदर पर बेड का चार्जेस फिक्स होता है, कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी से कराओगे तो आपका मेडिक्लेम अमाउंट का सिर्फ 1% ही मिलेगा आपको, और प्राइवेट कंपनी में ऐसी कैपिंग नहीं होती. ये सब चीजें वो जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला है वो बताता ही नहीं है. तो प्रॉब्लम ये जो मिडल स्टेज पे है ना, हर जगह प्रॉब्लम उस जगह है. ना तो उस कंपनी में प्रॉब्लम है, ना पब्लिक में प्रॉब्लम है. ढंग से आप एजुकेट करोगे ना, तब प्रोडक्ट बिकते हैं. तो एजुकेशन उन लोगों को नहीं है जो बेच रहे मिडल मैन है, उनको एजुकेशन नहीं है, तो नीचे वालों से अपन कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग पॉलिसी लेंगे. और जब भी तो वो होता है कि एजेंट आते हैं, उनके फोन आते, काट दिए जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह वर्क करते हैं, कि जैसे मेरे पास कोई पॉलिसी बेचने वाला फोन आता है, मैं काट देता हूँ, क्योंकि उनकी इमेज ही ऐसी क्रिएट हो गई है ना कि वो ऑपरेटर है. तो ऐसे समय में तो सर वो आप ये सोच रहे हो ना, ये बात का मेरे भी 3-4 साल 5 साल पहले मेरा ही व्यू था कि इतना पेनिट्रेशन है, इतना है, कुछ भी नहीं हो सकता.
आइदर एक तो, और फिर अपन बाहर की कंट्री से कंपेयर करते हैं, बाहर की कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी रहती है, इंडिया के अंदर लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वो नीड नहीं पूरी कर पा सकते, तो इंश्योरेंस की पॉलिसी लेके कहाँ से लेगा, कहाँ से सर्वाइव करेगा? तो अल्टीमेटली वो फिर क्या ढूंढता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और मेरी पॉलिसी भी हो जाए, तो फिर वो ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने लग जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रोडक्ट ही वो बिकते हैं। तो अपन अपन सोच तो बहुत कुछ ले, बट ग्राउंड पे जाके देखेंगे ना, प्रॉब्लम इज दैट कि वो लेगा कहाँ से, इतनी इनकम ही नहीं है। आप पर पर्सन इनके अपन टोटल जीडीपी की साइज देखे जा रहे हैं, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, वो इसलिए हो रही है कि अपन एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी को अमेरिकन इकोनॉमी की तरह कन्वर्ट हो रहा है कि 1% लोगों के पास 99% पैसा है, तो वो इसलिए इकोनॉमी की साइज बड़ी होती जा रही है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो छोटे लोग हैं उनकी तो इनकम कम होती जा रही है ना, उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जियो आने से पहले अपने घर का मोबाइल का खर्चा कितना था और अब कितना हो गया है। तो अब ऐसे खर्चे होते जाएंगे तो इंश्योरेंस हमेशा फिर सेकेंडरी हो जाएगा। तो वो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम क्या है, या तो उनको अच्छे से एजुकेशन करा जाए कि आप ये समझाएं, और जो अपना एजुकेशन सिस्टम है तो उसके अंदर अपन 10 तक तो ये सब चीजें काम की पढ़ते ही नहीं है, वहाँ तो फालतू की चीज चलती रहती है। तो जब अपन को फिर 11th के बाद इंसान सब्जेक्ट ले लेता है, अब जिसने साइंस की सब्जेक्ट ले ली उसको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी पता होगा कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। जिसने आर्ट्स ले ली उसको नहीं पता, कॉमर्स वाले को चलो फिर भी पता है। तो प्रॉब्लम तो बेसिक स्टेज पे ही है, वो चीजें सही नहीं होगी, चाहे कितने अच्छे प्रोडक्ट हो जाए, चाहे अपन किसी को ब्लेम कर ले, सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रतीक, ये जो ऑब्जर्वेशन है, या वानी प्लीज गो अहेड। आई थिंक तो क्या कहते हैं, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि अवेयरनेस, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली। सो जहाँ तक इंफॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे अगर क्या कहते हैं आपके अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज में इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस नहीं है तो वहाँ पर जाकर देनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर मैं कहूँ इंश्योरेंस का, तो ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसे कई रिस्क फैक्टर हैं, और लाइफ इंश्योरेंस और अगर जनरल इंश्योरेंस की भी बात करूं तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर फ्लड वगैरह आ गया, ठीक है, वहाँ पे आपने घर बनाया, इतनी मेहनत करके अपनी पूरी अपनी लाइफ की कमाई वहाँ पे लगाई, ठीक है, और अगर वो बह गया तो उसका जो रिस्क मैनेजमेंट उठाता है वो एक इंश्योरेंस कंपनी ही उठाती है, एंड नन ऑफ अदर्स। वो पे आउट इंश्योरेंस कंपनी ही करती है। इस रिगार्डिंग मैंने तो ऑलरेडी क्लेम भी लिया हुआ है, जो हमारी शॉप है उसका सीसी लिमिट होती है, सीसी लिमिट में स्टॉक का इंश्योरेंस होता है। तो मैं तो एजुकेटेड हूँ, बट मेरे फैमिली वाले तो सीधा से एक स्टेटमेंट देते हैं हमेशा कि जब इनको पैसे लेने होते हैं ना, जब तो ये एक साइन करवाते हैं, और जब इनको क्लेम लेना होता है ना तब इनको 100 साइन करवाते हैं ये। तो मेरे को तो पता है ना कि वो क्यों करवा रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चन मार्क नहीं उठाता कि वो गलत कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब वो पॉलिसी ले रहे थे तब उनको ये बातें नहीं बताई गई कि आप ये करो ये करो। तो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो सिर्फ ये इस तरीके से बेच रहा है कि जैसे शॉप बेच रहा है, कोई डिपार्टमेंट स्टोर पे जाके बेच दिया ना। इंश्योरेंस बेचना एक एजुकेटेड प्रोफेशन है, तो इसको एजुकेटेड प्रोफेशन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा ना जब तक ये ढंग से नहीं ग्रोथ करेगा। चाहे अपन कुछ भी कर ले, या तो अपनी एजुकेशन लेवल अच्छी होए, तो उस प्रोडक्ट को आप ऐसे कस्टमर्स के ऐसे सेल्समैन होने चाहिए जो एजुकेटेड हो, जिनको इनके बारे में पता हो। मैंने मेरी पॉलिसी, हमारे फ्लड आया था, मेरी शॉप पे इंश्योरेंस था स्टॉक का, तो मैंने एक आइडल सेट बना के रखा था उनको। तो जो मतलब मेरे एरिया हेड था ना, स्टेट का हेड था, उनका मेरे पास कॉल आया था कि उन्होंने बोला कि एक आइडल ही बना के भेजा है आपने, हमारे लिए एक रोल है कि इस तरीके से सब चीजें डॉक्यूमेंट आनी चाहिए जो एक क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सके। और दैट मोमेंट मैंने रिलायंस कैपिटल से इंश्योरेंस क्लेम करा था। बट मेरा को पता है ना कि वो क्या चेक करते हैं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन रहा है, मैंने ऑडिटे करी है, तो मुझे पता है कि वो लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो वो ईजी है। बट अब मैं नहीं होता, मेरी फैमिली में तो क्लेम ही नहीं ले पाते कभी। तो वो प्रॉब्लम है ना, क्लेम दिलाने वाले नहीं है। दूसरा, क्लेम जो पॉलिसी दे रहा है वो ढंग से एजुकेटेड नहीं है। तो आपने पॉलिसी तो दे दी, फिर वो सेकंड स्टेज पे जाने के बाद ना जब क्लेम लेना होता है तब कोई नहीं होता। तो आप जब तक या तो ये हो कि जो पॉलिसी बांटने वाले हैं ना वो ढंग के नहीं है, तो फिर ये जो क्लेम लेने वाले हैं ना वो लोग ढंग के होने चाहिए, जिनसे क्लेम सेटलमेंट हो। मतलब जो बंदे हो ना थर्ड पार्टी, एक ये नया प्रोफेशन जनरेट होना चाहिए जो क्लेम सेटलमेंट करवाए, ये सब करवाए, वो लोग अच्छे होने चाहिए। तो अदरवाइज ये सेक्टर है ना ऐसे ग्रोथ नहीं कर सकते। उसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जब कस्टमर अपना पॉलिसी ले लेता है तो उसके बाद में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स। ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, क्लेम डिपार्टमेंट होता है, वो प्रॉपर उसमें इन्वेस्टिगेशन करके और उनको प्रॉपर तरीके से समझा के कि आपने ये प्लान लिया है और इसमें ये बेनिफिट्स है, आगे वो कन्वे करते हैं। उसके बाद में ही उन्हें क्लेम दिया जाता है, अदरवाइज उन्हें क्लेम नहीं दिया जाता। एंड ये बातें मेरे को पता है कि ये होता है, सिस्टम है, बट ऐसा सिस्टम वर्क नहीं करता। आप रूरल में जाके देखिए, तो अपनी पॉपुलेशन रहती तो रूरल में ही है ना।
प्रतीक, ये वो Well, सिस्टम रूरल में there is रहती है, लेकिन there आज is के टाइम में अगर मैं बात करूँ, डिजिटल का ज़माना है और यहाँ पे आज के टाइम में ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप इंश्योरेंस का भी देखेंगे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। प्लीज़ गो अहेड एक्सीडेंटल। मैम मुझे पता है सब है, बट आप मेरी बात समझ नहीं रही। ये सब उनके लिए जो एजुकेटेड है। प्रतीक प्रतीक देखिए, मैं आपकी एक बात का सॉल्यूशन दे देता हूँ, देन शॉर्ट में आई विल जस्ट टेक 10 सेकंड, देन विल गो टू एक्सीडेंटल सर। प्रतीक, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें एक जो क्लेम सेटलमेंट वाली बात आपने कही है, उसके लिए सर्वे होता है, और वो जो सर्वेयर हैं वो इंडिया में सब्सटैंशियली बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। और जो आपने एक एजुकेशन और प्रमोशन की बात करी है, मैं उसको थोड़ी देर में मतलब जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ कुछ अच्छे स्टेप्स उठाए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू भी। तो वी विल डिस्कस दैट। एक्सीडेंटल सर, प्लीज गो अहेड। या बेसिकली जैसे हम इन्वेस्टमेंट में करते हैं कि भाई जो ड्यू डिलिजेंस है वो हमारे पार्ट में है और दैट शुड बी डन बिफोर हैंड। लाइकवाइज कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बीट लाइफ और नॉन लाइफ, ठीक है, और उसमें लाइफ में भी अगर टर्म इंश्योरेंस और टर्म विद रिटर्न प्रीमियम वाला जो भी है, तो बेसिकली क्या है, जैसे आजकल कोई यार फोन भी खरीदता है तो देर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल वेयर यू फाइंड डिफरेंट डिफरेंट पीपल गिविंग रिव्यूज एंड कंपेयरिंग डिफरेंट फोन्स इन द सेम कैटेगरी, राइट। सो लाइकवाइज काफी ऐसे जैसे पॉलिसी बाजार और ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो आपको मतलब इंश्योरेंस का भी बेसिकली, ऑल्दो दे आर ऑल्सो सेलिंग इंश्योरेंस, बट अगेन एक ओवरव्यू लेने के लिए यू कैन कंपेयर, राइट। तो कंपेयर करके और आप थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस दिखाएं दोज हु हैव एक्सेस टू मीडिया। ऑब्वियसली रूरल वाली बात प्रतीक की ठीक है, बिकॉज रूरल में तो व्हेन अ पर्सन गेट्स अ जॉब और उनको ये रहता है कि भाई टैक्स बचाना है तो LIC, राइट। दे डोंट नो कि भाई उसमें कितना आपको, क्या बात है, कितने का आपका इंश्योरेंस है, क्या उसमें बोनस है, क्या आपकी मेच्योरिटी टाइम है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है इन बिटवीन। अगर आप सरेंडर करेंगे तो उनको नहीं पता होता, बिकॉज जो LIC का एजेंट नेटवर्क है, यू फाइंड इन एवरी फैमिली और मतलब रिलेटिव कोई ना कोई ऐसा होगा जो LIC का एजेंट है या कहीं ना कहीं मतलब लिंक निकल जाता है। और ये होता है ना, उनको टारगेट रहता है ईयरली कि भाई इतना करना है, तो उनको और कहीं तो मुर्गे मिलते नहीं है, तो विद इन फैमिली एंड रिलेशंस दे गेट टू पीपल एंड डू देयर पॉलिसीज। तो बेसिकली ये है ड्यू डिलिजेंस आपके पार्ट में। दूसरा क्या है कि इनिशियली जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के केस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि देखो, जो डिस्क्लोजर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो कि आपने इनिशियली डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं दिए और डाउन द लाइन भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े और वहां पे डिस्क्लोजर गलत निकलाता है, तो आप दोनों तरफ से मर जाते हैं। आपने इंश्योरेंस का पैसा भी पे किया, प्लस डिस्क्लोजर के फेलियर में आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली ये सजेस्ट करूंगा कि भाई जो आपके डिस्क्लोजर है, आपको कोई पहले से कोई क्रॉनिक या एक्यूट आपको कोई बीमारी है तो उसके बारे में पूरा आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, सो दैट डाउन द लाइन कभी आपको ये ना हो कि भाई आपका डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे कई इंसिडेंट्स देखे हैं कि जिसमें बाद में लोगों ने मतलब, क्या होता है, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे टीम आती है, उनसे इंक्वायरी करती है, पूछती है, जो उनकी स्टेटमेंट होती है, इवन डॉक्टर को आपने कहीं दिखाया है और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन में वो हिस्ट्री आपसे पूछता है और आपने हिस्ट्री में लिखवाया है कि मेरे को ये इतने साल से है, और वो आपके डिस्क्लोजर से मैच नहीं करती है, तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है। तो बेटर सेफ देन सॉरी वाली पोजीशन हो जाती है। तो आप सबको बेसिकली ये होना चाहिए कि भाई प्रॉपर आपको पहले समझना चाहिए। अब देखो, टर्म इंश्योरेंस किसके लिए है? अब कोई नया नया ऐसा है कि भाई जिसपे फैमिली की डिपेंडेंसी है, या फिर आपने जॉब जस्ट स्टार्ट करी है, तो आपके पास डिपेंडेंसी है और आपकी से फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर है और आपको लगता है कि आपकी एब्सेंस में उनको फाइनेंशियली इश्यू हो सकते हैं, तो इट वुड बी वेरी वाइज टू गो फॉर अ प्योर टर्म प्लान। और उसको आप जितनी जल्दी लेंगे ऑब्वियसली उतना आपका प्रीमियम कम रहेगा। उसमें भी ये होता है कि भाई आपको कितनी एज तक आपको लेना चाहिए। अब मान लो रिटायरमेंट के आसपास तक की एज है, जब ये होता है कि बच्चे डिपेंडेंट ना होके वो भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और दे ऑल्सो गेट इनटू सम काइंड ऑफ करियर। तो उस टाइम पे अब ये नहीं है कि भाई आदमी 100 साल की, 80 साल की, या जितनी भी मैक्सिमम लिमिट है उसका प्रीमियम दे के और बिना बात उनको प्रीमियम दे के अमीर बना रहा है कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज।
तो बेसिकली आपको देखना है कि भाई आपने से 25 और 30 के आसपास आपने जॉब स्टार्ट करी, अगले 20 साल के लिए आपको लगता है 20-25 साल के लिए कि आपकी फैमिली की डिपेंडेंसी आपकी वजह से हाई रहेगी और इन बिटवीन आपको कोई अनसर्टिनिटी हो जाए तो दे नीड ए बैकअप। तो बहुत सारी, और उसमें भी रिटर्न प्रीमियम का ऐड ना करके आप काफी प्रीमियम बचा सकते हैं, क्योंकि वही है ऑब्वियसली आप प्रीमियम ज्यादा देंगे और वहां पे ओवरऑल जो आपको रिटर्न आरओई मिलेगा वो काफी कम होगा कंपैरेटिवली। देयर आर अदर एसेट क्लासेस व्हिच आर बेटर प्लेस्ड। सो अरुण, इन द मीन टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू राजीव मलिक जी। वो भी आपकी और हमारी तरह काफी लंबे टाइम से इंफॉर्मेटिव स्पेसेस एंड we are into this ecosystem and he is a very prominent name in that. So राजीव जी को भी भेजिए, और in the meantime अनीश जी, प्रतीक जी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं, more than welcome. I can add something here. Rajiv Malik ji. Right, sir. I have sent the request. Rajiv Malik ji, Wasim Shah ji, please accept the request. और नीचे जो भी listeners में हैं, I would request everyone, if you have some questions, kindly send your request. Rajiv Malik ji, please accept the request. Yes, Anish and Pratik, please go ahead. So एक चीज में है कि अगर the right amount of information is given, एक तो that is one side from the customer side, potential customer side, and दूसरा है कि if the right kind of proper adequate training is given to the ones the employees or maybe even the agents who are trying to sell the policies, then that can make a difference. Now if the penetration of the policies, the penetration of the insurance business grows, then what will happen is that कि आपका तो cost for the companies will also come down because of the volumes. So that way they'll be able to give maybe service more customers at lower premiums and have better penetration as compared to हमारा जो अभी है. अभी एक और चीज है कि lot of the companies they offer as a part of the package, they offer insurance to employees, and agar if that reach can be expanded further to businesses, wherein even not just large companies but even small medium enterprises, which I believe वहाँ उतना penetration नहीं है, अगर वो corporate sector को भी address करें तो then there is a lot of untapped potential. तो अगर रीच बढ़ता है, स्पेशली नॉट जस्ट इन द मेट्रो सिटीज बट इन स्मॉलर टाउन्स ऑल्सो, सी हमारे स्मॉलर टाउन्स जो हैं, लॉट ऑफ पीपल वहाँ बहुत प्रोग्रेस भी हो रहा है एंड उनकी डिस्पोजेबल इनकम इज ग्रोइंग. तो वहाँ एक डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग अगर करें कि भाई ये जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका एक स्मॉल पोर्शन आप इन्वेस्ट करें, and if they are given some logic behind it कि भाई ये इतना अमाउंट आप पर एनम देंगे एंड कभी on an average you may health requirement आपको इमरजेंसी हो सकती है in a lifespan after this age so much, and that if you are not insured health insurance तो आपकी cost जो है will be anywhere between few lakhs to several lakhs depending on the severity of the health problem. वो अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया होता then you would have recovered far more than what you paid. क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, अभी recently just couple of months back my wife had a gallbladder operation, emergency, and it had to be and that costed almost 5 lakh rupees. Now I had unfortunately for whatever reason not taken health insurance for her, and मुझे realize हुआ कि अगर मैंने प्रीमियम दिया होता I would have, the amount that I spent in the operation, I would have easily covered her for probably the rest of her life, 20-25 years, that calculation. So अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करके वो एक्सप्लेन करेंगे लोगों को, then maybe they'll get convinced and they'll realize, because ये लाइफस्टाइल हम लोग का चेंज हो रहा है. lot of people are eating out, fast food है, ये है, वो है, so probability of people falling sick is more. Especially when they वो junk food है, cholesterol, all these kind of things. Recent जो data and statistics is that the younger generation who are up to below 40, उनमें the number of heart diseases has gone up exponentially in the last few years.
So why is that happening? Because of the lifestyle. So now those are the people, we need to cover, and that young में आप ले लेंगे insurance, then you will be covered, covered for a lifetime, and that is what will secure you. So अगर आपका insurance business grows, then it also creates more job opportunities. So more jobs, and obviously then more jobs are created, then those people also earn, and then they save. So it's a very it's all linked up. The insurance business grows, then the whole economy grows as a whole also, because पैसे की हम लोग के कंट्री में कमी नहीं है as a whole. The fact that we have 28% of the GDP as savings rate, which is the highest in the world, itself shows that there is a huge potential. But it's just that वो potential को हमने उस direction में we have not been able to tap into it. So this is one thing I felt could make a difference if some efforts are made in this direction. Thank you very much, Anish. Arun, Yes, I think उनका कोई कॉल आ गया है राजीव मलिक जी का. I will again send them the request. Yes, accidental. Yeah. All right. So in the meantime, we also have Manish, if he would like to share his views on insurance sector or maybe anything on insurance, so he's more than welcome. सर मेरे को तो सुनने में आया है कि जो आयुष्मान भारत का कवरेज है 5 लाख रुपीस पर फैमिली है, जो पुअर जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको मिल रहा है, तो उसका कवरेज शायद 15 अगस्त के बाद एक्सटेंड करने वाले हैं बाकी लोगों के लिए भी, विद सम प्रीमियम टू बी पेड बाय द पीपल. तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी इंश्योरेंस सबको कराना चाहिए, वो बेटर है, अच्छा है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि आजकल लाइफ में पता नहीं चलता कि कब इमरजेंसी आ जाए, किस टाइम आ जाए. तो इंश्योरेंस, एक तो टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर कराना चाहिए सबको, और फैमिली का सबका कराना चाहिए. मेरा तो यही विचार है सर. सर ये जो आयुष्मान भारत का है ना, उस पे ना स्टेट की पॉलिसी डिपेंड करती है कि कैसे स्टेट कैसे उसको अडॉप्ट करता है. हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है, मतलब हर स्टेट के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है. कुछ लोगों ने डायरेक्टली सेंट्रल की डायरेक्टली स्कीम अडॉप्ट कर ली, कुछ लोगों ने अपनी स्टेट की लॉन्च करी है. जैसे राजस्थान के अंदर एक सर्टेन अमाउंट पे करो, आपकी पूरी फैमिली इंश्योर्ड हो जाती है. 800 समथिंग कुछ अमाउंट जाता है एनुअली, उसमें 5 लाख का कवर होता है. बट वो नहीं प्रतीक भाई, उसमें मैं बताता हूँ, उसमें एक राइडर है जो सेंटर की स्कीम है वो वैसे ही अडॉप्ट कर ली है, लेकिन अगर उससे बाहर किसी को आपको देना है, जैसे हिमाचल ने भी किया है या शायद जम्मू कश्मीर ने भी किया है, तो उसका आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा. मतलब जो लोग उसके अंडर नहीं कवर हो रहे उसको नहीं आपको नहीं नहीं कवरेज नहीं नहीं सर, नहीं, मैं इस बारे में श्योर हूँ. राजस्थान में जैसे कई स्टेट ने सेंट्रल की जो स्कीम लॉन्च करी थी ना, डायरेक्टली वो ले ली. कुछ स्टेट ने सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन लेके अपने स्टेट का कंट्रीब्यूशन जोड़ के या फिर कुछ भी ना जोड़ के कंबाइंड एक स्कीम लॉन्च करी है. तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो एक बेसिक स्कीम है, उसके अंदर कोई अगर कवरेज नहीं ऐड ऑन देगा करे, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने अपना एक प्रीमियम ऐड करके तो वो उसमें दे दिया है. इससे क्या होता है ना, एडवांटेज क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो भी आ जाते हैं, तो उसका इंफ्रा भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जैसे कोई अब आदमी इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब वो अफोर्ड कर रहा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में Manish भी sir, जाता है. Pratik, I would just like to request both of you कि we have राजीव जी with us, and I think उनके पास US का भी काफी नॉलेज है, and since आयुष्मान डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी ओबामा ने जो स्टार्ट करी थी इंश्योरेंस की स्कीम, तो we should hear him out probably and then we will continue. उनको शायद कुछ नेटवर्क का भी ग्लिच है. राजीव सर प्लीज, आउट ऑफ द टर्न, प्लीज गो अहेड सर. राजीव मलिक सर. Rajiv sir, kindly take the mic, please. Rajiv sir, kindly unmute your mic and please start. Well, probably I think he is experiencing some glitch. All right. Namaskar, okay, Prince, Vani ji, Arun, Anish and Pratik, Manish, friends. It's a pleasure to join this team of young people, and I am an elderly person. Prince, I have been to USA and Canada and many other countries, but I don't, because I have not lived, I can share with you
that fortunately my own experience with both LIC and Oriental Insurance, these are the two service providers of insurance whom I used in my life. And Oriental Insurance, our whole family was having this Mediclaim policy, and we got very good service in both the cases. So I would like to say that as Anish was mentioning about well-trained agents and all that, both the people who gave me service in LIC and Oriental for my Mediclaim and my life policies, sincere people, they were thorough, professional. Whenever we needed help, they came out. And another thing is that like for